Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about the magnets, in which we have seen the properties of magnets, the types of magnets, and how to store the magnets. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter, that is air around us. So, students, we all know कि हम सब के आसपास air present है. So अब इन air की क्या क्या properties होती है, what all components they have, we are going to learn everything about the air and why this air is so important for all of us. So let's see the spotlight of this chapter. So first of all, we are going to learn all these points in the chapter itself. So let's see what all things we are going to learn. So know what air is made of: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, dust particles, etc. So now बच्चों अब हमको क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हम लोग ये चीज सीखेंगे कि हमारी एयर जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है. सो हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं. सो उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न study that air plays an important role in supporting life through photosynthesis and respiration. So अब हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से एयर जो है वो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Learn how plant balance oxygen carbon dioxide level through photosynthesis. And इस तरह से हम लोग एक और चीज समझने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट जो है वो बैलेंस करके चलते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. सो रिकॉग्नाइज डिफरेंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिजम्स, गिल, लंग्स एंड स्टोमेटा. सो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास क्या क्या डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गिल्स, लंग्स एंड स्टोमेटा. Then understand how human activities cause air pollution and its effect on health and environment. So इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से human activities जो है वो affect करने वाली है हमारी air को pollute करने वाली है, और इस air pollution की वजह से कैसे हमारे health पे और हमारे environment पे effect होने वाला है. So learn about ways to reduce air pollution, the planting, emission, रिडक्शन, रिसाइकलिंग. सो नाउ बच्चों अब हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू प्लांट मोर ट्रीज, हमारा जो एमिशन है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं और चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं. Then we are going to understand the water cycle regulation of atmospheric water vapor. And इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग वाटर साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर. So identify visible air contaminants, dust, smoke and their environmental implication. And इसके बाद हम लोग air contaminants को क्या करने वाले हैं? आइडेंटिफाई करने वाले हैं, जैसे कि dust, smoke and इनके environmental implication क्या होंगे, यानी कि हमारे environment को किस तरीके से affect करेंगे. So now students, let's start with boot up. So air is important for all living beings on earth. Wind is important for various life processes and weather pattern. So बच्चों हम सबको पता है कि air हम सब के लिए, सारे living organisms के लिए बहुत ज़्यादा important है. And इसके बाद we have wind. So wind जो है वो important है हमारे बहुत सारे life processes के लिए and even weather patterns के लिए भी. So we breathe air to survive, right? It contains oxygen which our bodies need. So हम सब लोग air को breathe in करते हैं ताकि हम सब लोग survive कर सके. So अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजन होता है जो कि हमारी बॉडीज को चाहिए होता है. So look at the pictures. Can you think of one purpose for which air is required in each of the four cases? So now बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है? आपको इन सारी पिक्चर्स में से खाली एक पर्पस के बारे में सोचना है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एयर की जरूरत फील कर सकते हैं. तो राइट इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर. सो नाउ बच्चों अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये बच्ची क्या कर रही है? ये बलून के अंदर एयर फिल कर रही है. सो नाउ आपको क्या बताना है? कैन यू थिंक ऑफ वन पर्पस फॉर विच एयर is required in each of the four cases. So आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर एयर को जरूरी मान रहे हैं. So हो सकता है कि इस बच्ची को कुछ डेकोरेशन करनी हो जिसके लिए इसको बलून्स जो है वो डेकोरेट करने हो अपने रूम के अंदर, एंड दैट इज वाई ये एयर को फिल कर रही है बलून्स के अंदर. देन हेयर हम लोग देख सकते हैं विंड मिल्स, एंड यहाँ पे विंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? सो दैट इन विंड मिल्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पाए. देन हेयर हम लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर ये लेडी जो है वो फ्रेश एयर में बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही है। सो यहाँ पर एयर का पर्पस क्या है कि ये इसको फ्रेशनेस प्रोवाइड करवा रहा है। देन here we can see that because of the wind ये जो water है ये क्या कर रहा है, ये हमारे कोस्ट के साथ एकदम से कोस्ट के ऊपर ये अटैक कर रहा है। सो नाउ यहाँ का पर्पस क्या हो सकता है कि वाटर जो है वो हमारे कोस्ट तक आए, सो इसलिए हमारी एयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। So now student, air is a mixture of gases that we cannot see but is all around us. All living things need to breathe and survive. So बच्चों अब air क्या है? Air mixture of gases है, right? Air के अंदर बहुत सारी gases होती है। So ये सारी gases या फिर ये mixture हम लोगों को दिखता नहीं है but still हम सबको पता है कि ये हमारे आसपास present है। So जितने भी living things है इन सबको क्या चाहिए? इनको ये air चाहिए ताकि ये लोग breathe कर सके, ये लोग survive कर सके। Even we can feel the presence of air when it moves, known as wind. So now बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इस एयर की प्रेजेंस जो है तब भी फील होती है जब ये मूव करती है, राइट? जब एयर मूव करती है तभी हमें फील होता है कि अच्छा हमारे आसपास हवा है, और इस मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड। सो नाउ we will look at how air and wind help life on earth. So अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरह से एयर और विंड जो है वो लाइफ जो है अर्थ पर उसको सस्टेन करवा रही है। So earth is surrounded by a layer of air known as atmosphere. This atmospheric layer provides essential gases such as oxygen and nitrogen that support life. So now बच्चों जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? वो थिक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, एंड इस थिक लेयर ऑफ एयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। सो नाउ हमारा जो है एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये बहुत सारी एसेंशियल गैसेस हम सबको प्रोवाइड करवाती है। एंड ये एसेंशियल गैसेस क्या है? जैसे कि ऑक्सीजन, वी हैव नाइट्रोजन। सो ये दोनों गैसेस ही हमारी लाइफ को सपोर्ट करवा रही है। सो एयर इज नॉट जस्ट अराउंड अस ऑन अर्थ बट ऑल्सो फाउंड इन प्लेसेस दैट सीम एम्प्टी लाइक बबल्स और बलून्स। सो नाउ बच्चों एयर जो है वो खाली हमारे आसपास ही नहीं है, एयर ऐसी जगहों पे भी है जो कि हमको खाली दिखती है। जैसे कि अगर हम एक खाली ग्लास की बात करें, अगर हमने एक ग्लास को टेबल के ऊपर रख रखा है तो क्या उसके अंदर एयर नहीं होगी? बिल्कुल उसके अंदर एयर है। सो this happens because air is made of tiny bits called molecules that move around all the time. And बच्चों ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एयर किससे बना हुआ है? एयर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, एंड ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। दैट इज वाई ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। सो इवन इफ समथिंग लुक्स एम्प्टी इट इज फिल्ड विद एयर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इवन दो वी कैन नॉट सी इट। सो बच्चों चाहे हमें कोई भी चीज खाली लग रही है बट स्टिल वहां पर एयर प्रेजेंट होने वाली है। So now here we have this activity. So यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है प्रेजेंस ऑफ एयर इन एम्प्टी बॉटल। सो अब हम लोग इस चीज को प्रूव करने वाले हैं। हमने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी कि एयर हर जगह है, इवन खाली चीजों के अंदर भी एयर प्रेजेंट है। सो अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हमको चाहिए एक एम्प्टी प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉटल और एक टब ऑफ वाटर। सो अब प्रोसीजर क्या है? हम लोग अपनी एम्प्टी बॉटल को लेंगे एंड उसका कैप जो है वो हटाएंगे, यानी कि उसका ढक्कन जो है वो हटा देंगे। देन अब हम लोग प्लेस करेंगे बॉटल को अपराइट इनटू द टब ऑफ वाटर, ensuring it remains open to the surrounding environment. केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। सो नाउ बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी इस बॉटल को अपसाइड डाउन कर कर, यानी कि उल्टा हम लोग बकेट ऑफ वाटर के अंदर डालेंगे, एंड अब बस हमको ऑब्जर्व करना है कि हमको यहाँ पर दिखेगा क्या। सो ऑब्जर्वेशन क्या आती है? जैसे ही हमने बॉटल को सबमर्ज किया तो एयर बबल्स जो है वो निकलने लग गए बॉटल से एंड वो सरफेस पे आने लग गए। सो कंक्लूजन क्या है? द बबल्स एस्केप फ्रॉम द बॉटल टू इंडिकेट दैट इट कंटेन्स एयर व्हिच डिस्प्लेसेस द वाटर इनसाइड व्हेन सबमर्ज्ड। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सो ना बच्चों अब जैसे ही हमने इस बॉटल को उल्टा करके टब ऑफ वाटर के अंदर डाला, सो हमको कुछ एयर बबल्स यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। सो ये एयर बबल्स आए कहाँ से? सो एयर बबल्स ऑलरेडी बॉटल के अंदर थे। सो जैसे ही वाटर ने इनको इनकी जगह से डिस्प्लेस किया, इनको धक्का दिया, तो ये बाहर निकल कर आए, एंड इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है।
Now next we have composition of air. So air is primarily composed of nitrogen and oxygen along with smaller amounts of carbon dioxide, noble gases, water vapor, dust particles and traces of other gases. So now बच्चों air के अंदर mainly हमारे पास क्या है, nitrogen and oxygen, but इसके साथ साथ हमारे पास कुछ दूसरी gases भी है and हमारे पास water vapor भी है, dust particles भी है and कुछ कुछ gases एकदम traces में है, small amount में है. So आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 78% हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन. सो उसके बाद हमारे पास 21% क्या है, ऑक्सीजन, एंड 1% में हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. सो इसका मतलब एयर के जो दो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की. सो नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ द एयर व्हाइल ऑक्सीजन इज नियरली 21%. सो अब नाइट्रोजन जो है वो एयर के अंदर उसका कितना कॉम्पोजिशन है, 78%, एंड ऑक्सीजन का कितना कॉम्पोजिशन है, 21%. सो द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर गैसेस. अब जो बचा हुआ 1% है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है एंड अदर गैसेस है. सो एयर कॉम्पोजिशंस कैन वेरी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब बच्चों जो ये एयर कॉम्पोजिशन है ना, ये क्या कर सकती है, ये वर्ल्ड के हर रीजन में जाकर वेरी कर सकती है. हो सकता है कि इंडिया में अगर 78% नाइट्रोजन है, सो हो सकता है कि हमारे यूएसए के अंदर 78% नाइट्रोजन ना हो, उससे ज्यादा हो या उससे कम हो. सो ये चीज जो है वो वेरी कर सकती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. So now here we have hands-on learning. So हमारा aim क्या है, to observe the role of oxygen in supporting combustion. अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता. सो मटेरियल्स क्या चाहिए हमको, एक बिग बोल, वाटर, कैंडल, मैच बॉक्स और ग्लास. अब प्रोसीजर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले प्लेस करेंगे कैंडल को हमारे बिग बोल के सेंटर में, एकदम बीचों बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे कैंडल को रखने वाले हैं. नाउ carefully fill the bowl with water that makes the candle remains upright and submerged. अब हमको बहुत आराम से उस बोल के अंदर पानी फिल करना है so that हमारी कैंडल जो है वो submerged रहे, डूबी हुई रहे. Use a matchbox to light the candle. Immediately cover the lit candle with an inverted glass, making a tight seal with the surface of water. सो नाउ बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम इमिडिएटली कवर करने वाले हैं हमारी लिट कैंडल को एक इन्वर्टेड ग्लास से, एंड इस तरह से हम लोग एक टाइट सील बनाएंगे हमारे सरफेस ऑफ वाटर पे. Now, initially the candle burns normally inside the glass. After some time, the flame starts to flicker and get small. So बच्चों जैसे ही हमने burning candle के ऊपर एक inverted glass लाकर रखा, तो हुआ क्या कि initially तो candle normally burn कर रही थी, but जैसे जैसे वो glass रखने के बाद time बढ़ता गया तो वो flicker करने लग गई, यानी कि बुझने जैसी लग गई. So conclusion क्या आया कि candle जो है वो burn कर सकती है only in the presence of oxygen, which is initially trapped inside the glass. So अब already glass के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, सो उस ऑक्सीजन को यूज कर ही हमारी कैंडल बर्न कर रही थी. बट एज द कैंडल यूजेस अप द ऑक्सीजन, अब कैंडल ने जितनी ऑक्सीजन यूज करनी थी उसने कर ली. उसके बाद क्या हुआ, ग्लास के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची, फ्लेम वीक होता गया एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई एंड बर्निंग भी क्या हो गई, बंद हो गई, यानी कि वो बुझ गई. So now next we have carbon dioxide. So carbon dioxide का composition कितना है हमारी air के अंदर, 0.03%. So plants and animals breathe in oxygen from the air during process called respiration. So now बच्चों अब होता क्या है कि plants और animals क्या कर रहे होते हैं, plants और animals breathe कर रहे होते हैं oxygen को अपनी surrounding air से during the process of respiration. So oxygen is used by their cells to release energy from food, and हम लोगों ने respiration process में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है कि हमारी फूड से एनर्जी रिलीज करवाई जाए. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बैक इनटू द वर्ल्ड. अब इसके बाद होता क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी तो रिलीज होती है बट उसके साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वापस से हमारी बॉडी से एयर के अंदर वापस भेजा जाता है. So when we burn something such as wood or coal, it undergoes chemical reaction with oxygen from the air. So जैसे ही हम लोग किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, so उसके अंदर से क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, एंड द प्रोसेस
is called combustion. So अब हम किसी भी चीज को अगर burn कर रहे हैं in the presence of oxygen तो उसको क्या बोला जाएगा? combustion. So carbon dioxide is one of the products form along with heat and light. And ये chemical reaction हो जाने के बाद हमारे को heat, light, energy के अलावा एक और product मिलता है, वो क्या होता है? carbon dioxide. So now, next we have water vapor. So water cycle is a continuous process where water moves between the surface of earth and the atmosphere. So बच्चों water cycle क्या है? Water cycle एक continuous process है जहाँ पर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि water जो है वो continuously move करता रहता है हमारे surface of earth and atmosphere के बीच में. So it involves several stages and वो stages क्या है? Evaporation, condensation, precipitation and runoff. So the heat of the sun causes water from the seas, ocean, lakes and rivers to evaporate, forming water vapor in the air. So बच्चों होता क्या है, जो भी हमारे सन की हीट होती है वो क्या करवाती है, हमारे आसपास जितना भी वाटर है, चाहे वो रिवर में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, उनका जितना भी वाटर है वो सब लिक्विड से वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इसको बोला जाता था इवापोरेशन. सो नाउ the amount of water vapor in the air varies based on factors like temperature and humidity. अब बच्चों हमारे एयर के अंदर कितना वाटर वेपर होगा ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो क्या होता है, वो होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी refers to the amount of moisture in the air with higher humidity showing water vapor. सो नाउ स्टूडेंट्स, हायर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर जो है वो बहुत ज्यादा होगा. एंड जिस दिन हमारे पास लो ह्यूमिडिटी होती है तो इसका मतलब हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर लेवल जो है वो कम है. सो व्हेन क्लोथ्स आर वेट द वाटर ऑन देयर सरफेस इवेपोरेट्स. राइट, होता क्या है, हम लोग जब भी कपड़े धोते हैं सो उसके बाद हम उसको जाकर धूप के अंदर रख देते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो कपड़े सूख जाते हैं. सो जो भी वाटर होता है हमारे वेट क्लोथ्स के सरफेस के ऊपर वो क्या होता है, वो धूप के अंदर रखते ही इवेपोरेट हो जाता है, पानी गैस के अंदर बदल जाता है. दिस मीन्स दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द हीट इन द एयर और द सन. दिस कॉजेज द वाटर टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. सो द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स डिसअपीयर्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर. सो नाउ बच्चों होता क्या है, जैसे ही हम लोग कपड़े धोते हैं और उसको बाहर धूप में सूखने के लिए रख देते हैं सो हमारे सन से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हमारे कपड़ों के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो किसके अंदर बदल जाते हैं, लिक्विड से गैस के अंदर बदल जाते हैं एंड दिस गैस इज वाटर वेपर. और ये इस तरीके से हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एयर में चले जाते हैं एंड हमारे कपड़े सूख जाते हैं. So you can observe the presence of water vapor in the air through simple experiment. Place a glass of ice water in a room. So now बच्चों आप लोग क्या करने वाले हो, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट है या नहीं, और ये चीज हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे. सो नाउ अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास रखना है आइस वाटर का अपने रूम के अंदर. सो द कोल्ड ग्लास cools the warm humid air around it and the water vapor in the air condenses into tiny water droplets on the outside of the glass. So now बच्चों होगा क्या कि जैसे ही हम लोग एक ठंडा बर्फ वाला ग्लास हमारे एनवायरनमेंट में रख देंगे सो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, वो तो ऑलरेडी वार्म है. सो इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर जैसे ही हमारे ठंडे ग्लास के कॉन्टैक्ट में आएंगे सो वो गैस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर. एंड यही रीजन है कि जब भी हम लोग एक ठंडा स्टील का ग्लास बाहर रख देते हैं तो उसके आउटसाइड सरफेस पे हमको छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ कहां से रहे हैं, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है जो कि एक ठंडा एनवायरनमेंट मिलते ही दोबारा से किसके अंदर चेंज हो जाता है, वाटर के अंदर. सो दिस कंडेंसेशन शोज द वाटर वेपर इज इन द एयर. एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिसमें वेपर लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन हमको ये बता रहा है कि हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है. So now students, here we have pick up more. So the ozone layer is special layer atmosphere of the earth. So हमारे पास एक ओजोन लेयर है एंड ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत स्पेशल लेयर है. क्यों हम इसको स्पेशल लेयर बोल रहे हैं, क्योंकि ये लेयर हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. सो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आ रही है, इन रेज से हमको ओजोन लेयर बचाती है. सो दिस शील्डिंग हेल्प्स प्रिवेंट सनबर्न, आई डैमेज एंड स्किन कैंसर. सो अब ये ओजोन लेयर जो है वो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है. बट व्हाट इफ अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए ये ओजोन लेयर नहीं होती तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, हमको सनबर्न्स हो सकते थे, हमारी आईज डैमेज हो सकती थी, हमको स्किन कैंसर के इश्यूज हो सकते थे. सो
इट इज लाइक अ नेचुरल सनस्क्रीन फॉर द प्लैनेट। सो हम सब लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं ना कि धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाओ, सन की रेस से हम लोग को बचना है, बट नेचर ने हमको ऑलरेडी एक नेचुरल सनस्क्रीन जो है वो दे रखी है, एंड वो कौन है? हमारी ओजोन लेयर। Now students, next we have dust and smoke. So when sunlight enters a dark room, it makes the room bright, right? So जैसे ही sunlight एक dark room के अंदर आती है तो वो room क्या हो जाता है? वो बहुत bright हो जाता है. So we can see small things floating in the air such as dust and smoke from factories and car. So अब जैसे ही ये light हमारे room के अंदर आएगी तो हम लोग बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं हमारे air के अंदर float होते हुए, जैसे कि हम लोगों को dust दिखेगा, हम लोगों को smoke दिखेगा factory से और car से. So these smallest things reflect light so we can see them. अब होता क्या है बच्चों कि ये छोटी छोटी सी चीजें भी क्या कर सकती है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, एंड हम सबको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस. सो दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एयर क्वालिटी इनसाइड द रूम. सो इस तरीके से आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब एक डार्क रूम के अंदर कहीं से सनलाइट आ रही होती है तो हमको इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं, है ना? सो Now next we have brush up session. So look at the picture and answer the following questions. यहाँ पे हमारे पास ये picture है और इस picture को देखकर हमको कुछ questions के answer करने हैं. So place a plastic bottle in warm water for a few minutes. अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक plastic bottle को एक warm water के अंदर रखने वाले हैं. Quickly transfer the bottle to the bowl of ice water. And एकदम से अब आप क्या करोगे? अब आप इस plastic bottle को जो कि warm water के अंदर थी, आप इसको फटाफट से जाकर रखने वाले हो एक बोल ऑफ आइस वाटर में. अब आप यहाँ पर चेंजेस जो है वो क्या ऑब्जर्व करोगे? सो व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द प्लास्टिक बॉटल व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन वाटर? सो आपको ये बताना है कि जब आपने एक प्लास्टिक बॉटल को एक गर्म पानी के अंदर रखा तब आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे. सो जब आप लोग उसको एक नॉर्मल वाटर के अंदर रखोगे सो आपका वाटर बॉटल जो है वो नॉर्मली जैसा होता है आपको वैसा ही दिखेगा, हल्का सा एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा. बट अगर हम बात करें व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड टू द आइस वाटर, अब होगा क्या? जैसे ही हम उसको ठंडे पानी के अंदर जाकर रख देंगे तो ठंडे पानी के अंदर क्या होगा कि हमारे जितने भी बॉटल के अंदर हमारे जितने भी एयर पार्टिकल्स है वो कंडेंसेट हो गए, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो पास हो जाएगा, एंड हमारी बॉटल जो है वो हमको इस तरीके से स्क्वीज होती हुई दिखाई देगी. सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इन आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करो. Now students, next we have air supports life. So air is essential for all living beings to survive. It contains of gases like oxygen and carbon dioxide which are important for plants and animals. So now बच्चों हम सबको पता है कि air जो है वो सारे living beings के survival के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and air के अंदर कुछ gases होती है जैसे कि oxygen and carbon dioxide जो कि plants और animals दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. So plants use carbon dioxide from the air in photosynthesis to make their own food. So plants क्या करते हैं? Plants carbon dioxide का use करते हैं air के अंदर से. So इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर कर ही वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस में वो लोग क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ग्रो एंड सर्वाइव. सो ना बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को सस्टेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं. सो ना बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हमारे प्लांट्स की. सो प्लांट्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. स्टोमेटा अलाउ एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू एंटर द प्लांट. सो नाउ बच्चों प्लांट्स के पास क्या है? प्लांट्स के पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? स्टोमेटा. सो ये स्टोमेटा होते क्या है? ये टाइनी पोर्स है, एंड ये टाइनी पोर्स हम लोगों को हमारे लीफ की अपर साइड पे देखने को मिलेंगे. सो हमारी लीव्स की दो साइड्स होती है, अपर साइड एंड लोअर साइड. सो अब जो ये स्टोमेटास है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये हमको अंडर साइड देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारी लीव्स की जो लोअर सरफेस होता है वहीं पे हमको ये स्मॉल पोर्स स्टोमेटास देखने को मिलेंगे, एंड इन्हीं के थ्रू हमारी एयर का एक्सचेंज हो पाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सारी चीजें इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू ही एक्सचेंज हो पाती है. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट टू प्रोड्यूस फूड. अब बच्चों फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू कि उससे वो लोग अपना
फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाइल ऑक्सीजन उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। सो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सो नाउ बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये है स्टोमेटा, एंड आप लोग एक चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर जो ये स्मॉल पोर्स है इनको तो हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, बट इनके बाहर जो हमको ये बीन शेप के ऑर्गन्स दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? सो दीज आर गार्ड सेल। सो ये गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? ये गार्ड सेल्स हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को मेंटेन करते हैं, यानी कि जब तक गार्ड सेल्स स्टोमेटास को अलाउ नहीं करेंगे तब तक ना तो ये ओपन हो सकते हैं ना ही ये क्लोज हो सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एनिमल्स की। सो ऑल एनिमल्स नीड रेस्पिरेशन टू लिव, सच एज कॉकरोचेस, फिश और एलिफेंट्स। सो अब हम सब लोगों ने जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तो हम सब लोगों ने देखा था कि कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से हम लोग हमारे फूड से एनर्जी निकाल पा रहे थे, एंड विदाउट एनर्जी क्या हम में से कोई भी सर्वाइव कर सकता है? नहीं। सो हाउएवर दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म्स फॉर रेस्पिरेशन। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लोग रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, बट सबका मैकेनिज्म और ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट है। सो इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाइज ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। सो अब अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, जैसे कि कॉकरोचेस की, हाउस फ्लाइज की, सो ये लोग कैसे रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं? ये लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू, जिनको क्या बोला जाता है? स्पाइरिकल्स। सो नाउ वी हैव पिक अप मोर। सो स्टोमेटा आर लाइक टाइनी डोर्स दैट ओपन एंड क्लोज। सो स्टोमेटास क्या है? स्टोमेटा टाइनी डोर्स की तरह है, और ये टाइनी डोर्स क्या करते हैं? ये ओपन भी होते हैं और ये क्लोज भी होते हैं। सो व्हेन ओपन अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट फॉर यूज, व्हेन क्लोज दे हेल्प द प्लांट टू होल्ड ऑन टू द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइंग। सो नाउ बच्चों जैसे ही ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, एंड जब ये लोग क्लोज होते हैं तो ये अपने अंदर के वाटर वेपर को बाहर नहीं जाने देते, सो दैट इनका प्लांट ड्राई ना हो जाए। Now students, next we have, on the other hand, earthworms absorb oxygen through their moist skin surface. हम लोगों ने देखा insects के पास tiny openings है, spiracles, but earthworms क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने skin से, अपनी moist skin के through ही gases को observe कर रहे हैं, helped by a substance called mucus that keeps the skin damp. And हम लोगों ने ये पढ़ा था कि earthworm जो है वो किसकी वजह से crawl कर पाता है? That is because of the mucus, right? So earthworm mucus secrete करता है जिसकी वजह से ये damp रहता है, हमेशा हल्का सा वेट रहता है। सो दिस अलाउज फॉर द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट। सो नाउ बच्चों इन सारी चीजों की वजह से, इस म्यूकस की वजह से, इस हमेशा टाइनी स्किन ये अपनी स्किन की एब्जॉर्प्शन की वजह से अर्थवर्म क्या कर सकता है? ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है एनवायरनमेंट में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो नाउ here we have hands on learning. So अब हमारा यहाँ पर एम क्या है? हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द सॉइल। सो हमको दिखाना है कि हमारे सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है या फिर नहीं। सो मटेरियल्स क्या चाहिए? हमको जार चाहिए, सॉइल सैंपल चाहिए एंड जग ऑफ वाटर चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है? हमको फिल करना है जार को लूज सॉइल से। देन हम लोग क्या करने वाले हैं? हम पानी डालने वाले हैं जार के अंदर, जिससे हमारा सॉइल जो है वो कवर हो जाए। देन अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जार को क्लोजली बबल्स के लिए राइजिंग टू द सर्फेस ऑफ वाटर। सो हमको देखने को क्या मिलेगा कि बबल्स जो है वो राइज हो रहे हैं। सो बबल्स शो एयर इनसाइड द सॉइल। सो इसका मतलब हमारे सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं? बबल्स हमको कंफर्म कर रहे हैं कि एयर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सो दैट शो द रेस्पिरेशन इन सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। So now students, next we have in aquatic animals and plants. So aquatic animals like fish, tadpoles, crabs and shrimp have special organs called gills. So बच्चों अब हमारे पास aquatic animals है जैसे कि fish, tadpole, crab, shrimp, इन सब के पास क्या है? इन सब के पास एक special organ है जिनका नाम है gill. So gills help them to take in oxygen and release carbon dioxide. So अब gills का काम क्या है? Gills aquatic animals को oxygen
एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करते हैं. सो सम एक्वेटिक मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ एयर एज दे डिपेंड ऑन लंग्स. सो नाउ बच्चों, अब हमारे पास कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है जिनके पास गिल्स है, बट हमारे पास कुछ एक्वेटिक मैमल्स है जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल, ये सब क्या करते हैं, ये सर्फेस ऑफ वाटर पे आते हैं एयर को ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास लंग्स है. So, aquatic plants such as hydrilla absorb dissolved oxygen from water through their body surfaces. So, बच्चों, अब हमारे पास कुछ aquatic plant भी है जैसे कि hydrilla. So, hydrilla क्या करता है, ये absorb करता है dissolved oxygen को, जो कि पानी के अंदर ही dissolved होती है, and ये इस oxygen को absorb करते हैं अपने body surface के ही through. Now, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एम्फीबियंस की. सो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम्स फॉर बोथ एयर एंड वाटर. सो अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की. सो एम्फीबियंस कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं. सो इसलिए हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स. सो इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं जो कि वाटर में भी काम करे और लैंड में भी काम करे. सो क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स swim through the water with a portion of their snouts above the surface to breathe through nostrils. So बच्चों, अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की या फिर एलिगेटर की, सो ये लोग वाटर में कैसे स्विम करते हैं, इनका एक पोर्शन, इनका जो स्नाउट का पोर्शन होता है वो हमेशा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रहता है ताकि वो कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ कर पाए. फ्रॉग्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड. In water, frogs use their moist skin for respiration. So now बच्चों, frogs जब तक लैंड पे है तब तक वो अपने लंग्स का यूज करेंगे, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाएंगे तो तब वो अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए. सो नाउ हियर वी हैव थॉट शावर. Frog can breathe in water and on land. How do you think their breathing system might be similar or different from other animals? So बच्चों, अब हमको यहाँ पर क्या बताना है कि फ्रॉग्स जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं वाटर में भी और लैंड में भी, तो इनका सिस्टम जो है, इनका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है. सो जैसे कि हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं सो दैट कि वो वाटर के अंदर रिस्पायर कर सके, बट वाटर के अंदर फ्रॉग क्या करते हैं, वो अपने स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं, राइट, एंड लैंड पे वो लंग्स का यूज करते हैं. सो दीज आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो नाउ स्टूडेंट्स, here we have birds. So birds have a special breathing system to flying. This system consists of lungs and air sacs that always open for constant airflow. This setup provides oxygen they need for their high energy flight. अब बच्चों, birds के पास क्या है, birds के पास special breathing system है जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, easily उड़ भी सकते हैं. So this system consists of lung. अब इनके system में क्या है, इनके पास lungs है और इनके पास air sacs है. So ये air sacs क्या होते हैं, हमेशा खुले हुए होते हैं सो दैट एक कांस्टेंट एयर फ्लो जो है वो चलता जाए. अब इस सेटअप की वजह से क्या होता है, इनको ऑक्सीजन जो चाहिए होती है अपने रेस्पिरेशन के लिए वो इनको मिल जाती है, एंड इस कांस्टेंट एयर फ्लो की वजह से इनको हाई एनर्जी भी मिल जाती है जिससे ये ऊपर ज्यादा फ्लाई कर सके. Now we are going to talk about mammals. So most animals like us use their lungs to breathe. They breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide as a waste gas. So बच्चों, अब अगर हम लोग हमारी बात करें, so mammals जो है मोस्टली इन सबके पास क्या होते हैं, lungs होते हैं. So ये अपने lungs की वजह से ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं एंड बाहर क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाउ बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इन दी एयर. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प बैलेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन दी एयर. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, वो हम लोगों को एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टर्निंग सनलाइट इनटू फूड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर. सो सबसे पहली चीज तो प्लांट्स क्या परफॉर्म करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो फोटोसिंथेसिस करके वो लोग सनलाइट को फूड के अंदर बदल देते हैं एंड इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो व्हाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ, दे मेक मोर ऑक्सीजन दैन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस हेल्प्स कीप एयर ऑक्सीजन रिच फॉर अस टू ब्रीथ. अब बच्चों, हम सबको पता है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही ऑक्सीजन ब्रीथ भी करते हैं. सो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि प्लांट्स हमको हेल्प कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन उनको भी
तो चाहिए ब्रीथ करने के लिए। सो एक्चुअल में बच्चों प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हुए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड इतनी ज्यादा ऑक्सीजन उनको ब्रीदिंग के लिए नहीं चाहिए होती है। सो इसलिए हमारा जो साइकिल ऑफ ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहता है। सो सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लांट्स ने क्या करा, प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाया, राइट। ये ऑक्सीजन जो है वो अब क्या होगा, ये स्प्लिट अप होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। देन अगेन हमारे पास क्या है, सन से प्लांट को एनर्जी मिली, एनर्जी जो है वो हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग ने ली, उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के पास जाएगा एंड वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। So now students, here we have brush up session 2. So यहाँ पर हमारे पास है true false statement. So plants use carbon dioxide and oxygen for photosynthesis. So plants जो है वो कार्बन डाई और ऑक्सीजन दोनों को यूज करते हैं क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। So false. Then stomata are structures found on the upper side of the leaves. So no बच्चों, stomata जो है वो leaves की अंडर साइड यानी कि लोअर साइड पर मिलते हैं। So again this is false. Insects like cockroaches respire through their skin. So यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कॉकरोचेस अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं? So no, उनके पास क्या होता है, उनके पास स्पाइरिकल्स होते हैं। So again this is false. Then earthworms absorb oxygen through their dry skin surface. So ये क्या उनका skin surface dry होता है? नहीं, उनका skin surface moist होता है। So again it is false. Then नेक्स्ट वी हैव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो गिल्स का यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। सो यस, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। So now students, next we have air pollution. So air pollution refers adding harmful substances into the environment. So air pollution का मतलब क्या होता है कि हम लोग harmful substances को add कर रहे हैं हमारे environment के अंदर और ये harmful substances ultimately हमको ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। So air pollution is a big problem caused by human activities include the burning of fuels like coal and petroleum. So अब इस air pollution से क्या होता है, इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। एंड ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये एयर पोल्यूशन मेनली जो है किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। जैसे कि फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, हम लोग फैक्ट्रीज का वेस्ट जो है उसको बर्न करते हैं। सो इन सारी चीजों से क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। सो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ वुड एंड द एमिशन ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज आर मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ बच्चों, अगर हम लोग बहुत ज्यादा वुड को बर्न करेंगे, बहुत ज्यादा वेस्ट को बर्न करेंगे एंड हमारा स्मोक जो है वो निकलता जाएगा फैक्ट्रीज के अंदर से, सो इसका मतलब हमारी एयर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हो जाएंगे जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करेंगे। सो व्हीकल एग्जॉस्ट स्पेशली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। सो अब हमारे पास कुछ व्हीकल एग्जॉस्ट है जो कि क्या करने वाले हैं, जो कि स्पेशली हम लोगों को फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं एंड अब ये क्या करते हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इंडस्ट्रियल मशीनरी रिलीज गैसेस फर्दर वर्सनिंग एयर क्वालिटी। और अब होता क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में मशीन यूज करी जाती है वो भी क्या करते हैं, वो भी इस गैसेस को रिलीज करते हैं। सो हमारी एयर क्वालिटी और खराब होगी। सो दीज पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स इन द एयर मेकिंग इट इम्प्योर। एंड ये सारे पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, ये एयर के अंदर फैले रहते हैं जिसकी वजह से ये हमारी एयर को बहुत ज्यादा इम्प्योर कर देते हैं। सो एयर पॉल्यूशन has severe negative effects on plants. अब नाउ बच्चों, ये एयर पॉल्यूशन हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन है, हर किसी के लिए एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम सच एज एस्थमा एंड लंग कैंसर। सो ना बच्चों, अब होता क्या है कि अगर हमारी एयर पॉल्यूटेड हो गई है, सो इसका मतलब अब हम लोगों को बहुत सारे डिजीजेस जो है उनसे गुजरना पड़ेगा। एंड ये क्या होती है, जैसे कि एस्थमा, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है एयर पॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। सो ये कंडीशन है जो कि हमारे एयर पॉल्यूशन से हो जाती है। एंड इसके अलावा हमारे पास लंग कैंसर भी है। सो इतनी सारी डिजीज कंडीशन खाली एक एयर पॉल्यूशन से हो सकती है। सो क्रॉप्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय एयर पॉल्यूशन एंड ऑल्सो हमारे पास कुछ क्रॉप्स भी है। सो ये क्रॉप्स क्या करेगी, ये क्रॉप्स भी हमारे एयर पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हो जाएगी।
So, if we do not take action to improve air quality, the balance of oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere will be disrupted. अब बच्चों अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो होगा क्या कि हमारा जो बैलेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगी एंड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। एंड हम सब ने अभी अभी देखा कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके सर्वाइवल के लिए। So there are several ways to reduce air pollution, include planting trees, recycling plastics, checking vehicles for harmful gas emissions, and taking other steps to decrease pollution levels. So now बच्चों अब इसलिए हमारे पास क्या है कुछ सेवरल वेज है कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करवा सकते हैं। एंड वो तरीके क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी एंड जितने भी स्मोक्स है उन सबको हमारा ट्री एब्जॉर्ब कर लेगा। देन रिसाइकलिंग प्लास्टिक। अब अगर हम प्लास्टिक्स को ही रिसाइकल करना स्टार्ट कर दें क्योंकि हम सबको पता है कि प्लास्टिक्स जो है वो डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं एनवायरमेंट में, डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज नहीं करवा पाते एंड एनवायरमेंट में बहुत टाइम तक रह जाते हैं। सो क्यों ना हम लोग हमारे प्लास्टिक्स को रिसाइकल करना स्टार्ट कर दे। देन चेकिंग व्हीकल्स फॉर हार्मफुल गैस एमिशन। सो हम सबकी व्हीकल का आप लोग अपने घर में पूछ सकते हो, अपने फादर से पूछ सकते हो कि अगर आपके घर में कोई भी व्हीकल है वेदर इट इज अ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, सो हर व्हीकल का एक पॉल्यूशन चेक होता है। सो वो पॉल्यूशन चेक जो है वो हमको विद टाइम जो है रिन्यू करवाना होता है, वो कुछ महीनों तक वैलिड होता है। सो हम लोगों को अपने व्हीकल का पॉल्यूशन चेक करवा कर रखना है कि कहीं वो पॉल्यूट तो नहीं कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को। देन इसके अलावा हम लोग और भी स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम पॉल्यूशन लेवल्स कम कर दें। हम लोगों को वेस्ट बर्न नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्रीज है उनको अपने वेस्ट रेगुलेशन पे ध्यान देना चाहिए, डायरेक्टली उनको एयर में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। सो नाउ स्टूडेंट्स हेयर वी हैव ग्लॉसरी एंड ग्लॉसरी में सबसे पहले हम बात करेंगे नोबल गैसेस की। सो नोबल गैसेस क्या है? ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। देन वी हैव कंबशन एंड कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ बर्न करते हैं एंड इस बर्निंग से हमको हीट एंड लाइट निकलती हुई दिखती है। देन वी हैव ह्यूमिडिटी एंड हम सबने पढ़ा था ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव स्पाइरिकल्स। सो स्पाइरिकल्स का मतलब क्या होता है? ये टाइनी ओपनिंग देखने को मिलती है हमको इंसेक्ट्स के अंदर जिसके थ्रू वो लोग ब्रीथ कर सकते हैं। देन वी हैव म्यूकस एंड ये म्यूकस स्लिपरी सेक्रीशन है जो कि अर्थ वॉर्म के अंदर से निकलता है सो दैट उनका बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ग्राउंड और उनके बॉडी पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो पाए। देन वी हैव बाय प्रोडक्ट। सो बाय प्रोडक्ट क्या है? ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमारे मेन प्रोडक्ट के अलावा अगर कुछ और निकल जाए तो वो किसके अंदर आता है? बाय प्रोडक्ट के अंदर। देन एमिशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ समथिंग स्पेशली गैस और रेडिएशन। देन वी हैव एस्थमा। सो एस्थमा एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लंग्स को डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग करने में। Now students, here we have wrap up. So air is essential for life and consists of gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. So हम सब ने देखा एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए एंड इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्राइमरी components with smaller amount of other gases. So नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? ये प्राइमरी components है, स्मॉलर अमाउंट में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे गैसेस भी। देन एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो एनिमल्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनके पास गिल्स होते हैं जिससे ये अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकते हैं। देन वी हैव बर्ड्स, इनके पास एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, वाइल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये यूज करते हैं लंग्स को ब्रीथ करने के लिए। देन plants and animals maintain a balance by taking in oxygen and releasing carbon dioxide. So plants and animals क्या करते हैं? ये हमारे आसपास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। देन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स हेल्प्स कीप ऑक्सीजन लेवल्स इन द एयर। सो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, सो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारे एयर के अंदर मेंटेन रहता है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस ये कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन को। सो अगर
हम लोग फ्यूल्स जला रहे हैं, हमारे अंदर हमारे इंडस्ट्रीज से कुछ स्मोक्स निकल रहे हैं, सो ये सारी चीजें जो है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करेगी। देन पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड डैमेजिंग क्रॉप्स। तो अब ये पॉल्यूशन क्या करता है, ये हमारे एनिमल्स को, हमारे प्लांट्स को, हमारे ह्यूमंस को, हर चीज को डैमेज करता है, एंड इनफैक्ट दैट हमारे जो क्रॉप्स होते हैं ये उनको भी डैमेज करता है। So now students, here we have exercise on the basis of the chapter in which you have few questions, and also you have assertion reasoning, case-based study and prescribed questions. So students, I want you all to practice this exercise and this completes our all chapters. I hope आप सब लोगों को सारे chapters अच्छे से समझ आए होंगे, and I want you all कि आप सब इन chapters को अच्छे से revise करो, इनके questions को attempt करो, so that आप लोग अपने exams में अच्छा perform कर पाओगे. So students, I wish you all best of luck, take care, do well, score well in your exams. Bye bye.